सर, टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। सर, दो शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी, और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा, हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग with its aircraft carriers, hundreds of aircraft, political will. The Prime Minister of India says, we don't care. Come. But हमारा जो काम है हम उसे पूरा करेंगे। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा, आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए, क्योंकि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मैनूवर आपका होना चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर किए, एक नया देश बना। सर, लेट अस नाउ मूव टू ऑपरेशन सिंदूर। यस्टरडे आई वॉच्ड, राजनाथ सिंह जी का भाषण में सुन रहा था, एंड आई लिसन क्वाइट केयरफुली व्हेन पीपल स्पीक. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said, Operation Sindoor lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35, we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35, and we told them that we have hit non-military targets, and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now, maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation.
स्पीकर सर, यू इमेजिन, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. Yes. Now there is a second very important thing that Rajnath Singh ji said. Maybe he didn't mean to say this. He also said that he told the Pakistanis that we are not going to hit any of your military infrastructure. Now this is a very interesting fact, because, and I want you to listen carefully to this, I said freedom of maneuver, meaning freedom to the Air Force. Now listen to this quote very carefully. Captain Shiv Kumar, Defense Attaché, Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because, of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning you went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. Right? And the defense minister has said this in Parliament House itself, that we told the Pakistanis that we are not going to attack their infrastructure. इन्होंने बोला publicly house में कि भैया हम आपके जो military infrastructure है, आपके air defense system को हम नहीं अटैक करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? हवाई जहाज गिरेंगे। Thank you, sir. I would like to thank all the speakers that have spoken during the discussion of the protection of interests in Aircraft Objects Bill 2025, starting with M.K. Vishnu Prasad ji, Rajiv Pratap Rudy ji, whose knowledge and expertise, especially in the civil aviation subject, is of no competition in this house. And definitely, he always plays a co-pilot role to the ministry also in trying to guide us in a better way forward. And Ruchi Veera ji, Pratibha Mandal ji, Prem Chandra ji, Anna Durai ji, Lao Krishna Devarailu ji, Rampreet Mandal ji, Anil Desai ji, Supriya Sule ji, Naresh Maske ji, Radha Krishna ji, Darshan Singh Chaudhary ji, Mohammad Bashir ji, Rajkumar Sangwan ji, Ravi Kumar ji, Uday Srinivas ji, Francis George ji, Hanuman Beriwal ji, और रवि किशन जी, विशाल दादा पाटिल जी, कातिर आनंद जी, विजय कुमार दुबे जी, के सुरेश जी, जगदम्बिका पाल जी। ये चर्चा के शुरुआत तो ऐसा लग रहा था कि 5-6 लोग बोलेंगे और 1 घंटे के अंदर ही चर्चा खत्म हो सकता है, पर अभी जिस तरह से ये चर्चा हुई है 2.5 घंटे में, for 2.5 hours we have been continuously discussing, and 25 speakers have spoken on this bill with a great passion, with great involvement,
because that is the kind of passion civil aviation is invoking today in India, in the parliament, and also in general with the citizens also. And ये काफी स्वाभाविक है इस तरह सा उत्साह अभी सिविल एविएशन में सबकी तरफ से देखना, और ये आसान बात नहीं है। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि सिविल एविएशन की बढ़ोतरी और जिस तरह से हमारे हनुमान भाई ने बोला है कि आश्चर्यजनक उछाल जिसने लिया है, और ये उछाल ऐसे ही नहीं हुआ है, ये उछाल के पीछे एक विजन था। भारत में सिविल एविएशन के संबंध में एक विजन था, और विजन को पूरा करने के लिए एक मिशन था, और वो मिशन को मुमकिन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था। और इसी के वजह से आज जिस तरह से आज बढ़ोतरी हम देख रहे हैं वो सब हम हासिल कर पाए। फॉर 65 years almost, from independence to 2014, obviously there was civil aviation in the country, flights were going around, and there were a lot of people still traveling through the air travel, but the numbers will say that till 2014 the total passenger traffic in the country was 10 crore 38 lakhs. 2014 तक 10 करोड़ 40 लाख तक टोटल पैसेंजर थे जो घूमते थे हवाई यात्रा में। And by 2024, 10 years difference, from 10 crore 38 lakhs to almost 22 crore 81 lakhs, डबल हो गया पूरा। तो अभी काफी लोग बोल रहे थे कि यहाँ बीज कभी डाल दिया गया था, सिविल एविएशन के बीज तो कभी डाल दिया गया था, पर अगर फल भी देखना है तो सिर्फ बीज डालने से नहीं होगा, उसका पानी भी हमें करना है, उसका देखभाल हमें करना है। जिस तरह से सीजन्स बदलते हैं, सीजन्स बदलते वक्त भी हमें वो पेड़ को देखना पड़ेगा कि किस तरह से, किस हालात से वो पेड़ गुजर रहा है, और ये काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिविल एविएशन के तहत किया, तभी इस तरह का ग्रोथ हम आज इस देश में देख पा रहे हैं। पैसेंजर की ग्रोथ डबल हुई, और जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट्स थे, अगेन अप टू 2014 वी हैड 74 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री, और आज 2024 में अगर हम देखेंगे 159 एयरपोर्ट्स, और मैं जब बोल रहा हूं 2 और एयरपोर्ट अभी खुलने के लिए तैयार है। हमें डेट प्रधानमंत्री जी का जैसी मिल जाए तो वो भी हम खोल देंगे, और 159 को 161 भी कर देंगे। तो ये एयरपोर्ट्स की भी अगर संख्या देखेंगे तो पिछले 10 साल में वो भी डबल हो गए। एयरपोर्ट्स हैव डबल्ड इन द लास्ट 10 years, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग थ्रू एयर हैव डबल्ड इन द लास्ट 10 years, and most importantly the number of aircrafts also, which was around 340 in 2014. Now if you come to 2024, there are 840 aircrafts in the country. That is giving an indication of how much demand civil aviation is creating in the country also. Now with all this demand, I keep saying these numbers again and again because it is not an easy thing to do, the kind of growth we have seen in civil aviation in the country. You check with any other country, there are so many countries across the world. No other country has seen this kind of progress or this kind of growth. किसी और ने इतने सारे एयरपोर्ट्स कोई और देश बना नहीं पाया, कोई और देश में जिस तरह से ग्रोथ, पैसेंजर्स की ग्रोथ हुई है, कोई और देश दिखा नहीं पाया। ये सिर्फ भारत में हुआ है, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण हो पाया। और पिछले 10 साल में मैं बता दूं, सिविल एविएशन के जो हालात थे वो उतने आसान हालात भी नहीं थे। सिविल एविएशन में देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द कंट्री। टू स्टार्ट विथ, इन 2019 जेट एयरवेज जो इतने लंबे हद तक हमारे देश में चल रहा था और काफी प्रीमियम एयरलाइन था, लोगों से भी काफी जुड़ा हुआ एयरलाइन था और काफी सिटीज को कनेक्ट कर रहा था, जेट एयरवेज की बैंक्रप्सी हो गई। जेट एयरवेज वेंट आउट ऑफ पिक्चर। 2023 अनदर एयरलाइन, गो एयर, दैट आल्सो वेंट आउट ऑफ पिक्चर। नाउ विद इन 10 years 2 major airlines having a great capacity and great aircraft fleet, they have gone out of functioning. And more importantly, in these 10 years itself, the biggest hit any industry can see, and especially civil aviation, which was COVID. COVID भी इसी 10 साल के अंदर ही हुआ है। For 2 years, the whole flight travel industry, let it be air, rail, sea, everything, service industry, everything was just suddenly stopped, and it led to a lot of financial distress in all the overall economics of all the country also. Now, even with these challenges, I am telling you that we have grown with a CAGR of more than 12% in the country, and this is the civil aviation growth that we are seeing today. And it is very important that the growth that we are seeing till today
needs that continuous push. Because as far as the government is there, as far as the ministry is there, this is just the beginning. The growth that you are seeing in the country is just the beginning. अभी तो ये शुरुआत है. अभी और भी काम हमें करने पड़ेंगे. और उसी केस में हम ये बिल भी आज लेके आए ताकि सिविल एविएशन को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में आगे बढ़ाया, उसको वही स्पीड, वही मोमेंटम हम आगे भी बढ़ाते रहें. और ये सिविल एविएशन का आज जो बिल हम लेके आए, केप टाउन कन्वेंशन है इसका शॉर्ट फॉर्म, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल जहां से हम लेके आ रहे हैं वो केप टाउन कन्वेंशन था. साउथ अफ्रीका केप टाउन में 2001 में ये एक मीटिंग वहां पे हुई. देश के दुनिया के सारे कंट्रीज वहां पे मौजूद थे और उसका कारण ये था कि एयरक्राफ्ट का जो एयरलाइंस का जो एयरक्राफ्ट लेने का बिजनेस था वो मॉडल थोड़ा बदल रहा था. पहले तो ऐसा था एयरक्राफ्ट्स वो खुद ही परचेज कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने पैसे लगाकर खुद खरीद रहे थे, पर उससे कॉस्ट बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था. द बर्डन ऑफ बाइंग प्लेन्स ऑन योर ओन एंड हैविंग देम इन योर इन्वेंटरी was putting a lot of pressure on the financials of the airlines.